हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। शेर बेबस होकर दौड़ रहा उस तेजस्वी शिकारियों किशोर ने शीघ्र ही शेर के बड़े फाड़ दिए। शेर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी लोगों ने कोशिश की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराज जसवंत ने उनसे लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा दिया। निहत्ते जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया। इस बार कोशिश का नाम पृथ्वी सिंह था। हमारी भारत माँ सचमुच बहुत धन्य है कि यह समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते हैं। ऐसे वीर माता सचमुच बहुत समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते रहे हैं। ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। चखा दिया। सभी लोगों ने किशोर की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराज जसवंत सिंह ने शेर लथपथ पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगा दिया और महेंद्र सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट उतार दिया। क्या आप and rainfall has seen throughout the season. Understanding climate change help us learn about our environment and how it affects plant, animal and trees. इन समर इस तरफ है। उसने पढ़ा देखा नहीं तुमने? यहाँ पे है। In summer, the water level very low, where during the mosquitoes are significant something have rainfall during the monsoon. In India, causes the water in rivers and lakes so much that it is powerful. इसमें तेल भी डाल दूँ? दिलाए Water is essential for life but not all water is safe to
water from lakes, lakes, rivers, and Underground. underground service sources, often contains contains impurities, impurities, so it found not consumed be consumed directly directly without without performance is purification. Towns and cities water. Purification. Plants clean water from various sources by Passing passing in through layers of sand, gravels, and charcoal, charcoal to remove small particles after filtering water. or amounts other disinfections, action about added added to can kill kill remaining remaining germs, since the created then stored reservoir before being supplied homes, तेजस्वी इस पर सिपाहियों ने उकसाया तो जब शेर का भालू कर दिया some water down aquifers, amount of water into the ground depends on the type of soil and road. Groundwater is usually cleaner than surface water because it flows through layer of sand, clay, rock, and gravel, which naturally filter it. However, it can still become polluted by chemicals, especially when insecticide and pesticide and overuse in farming. Made available by various methods, wells are one of the oldest means of
should allow be covered Always. and clean the regularly. prepare meals are as groundwater down without 5. Groundwater. Irrigation. Journey from mountains, tiny, join, बादशाह को पकड़कर सिपाहियों, जंगल शेर को एक बड़ा सा आपने पूछा की और मुस्कुराकर किशोर ने बिजली की सी कुर्ती, में मयान से तलवार निकाली। तभी महाराजा जसवंत सिंह गर्जे, सुनो पुत्र, निहत्ते, पर तलवार से वार करना राजपूतों का नियम है नहीं। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। किशोर तुरंत तलवार को फेंककर निहत्थे भयंकर शेर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। शेर गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़कर किशोर पर कूद पड़ा। यहाँ देखकर किशोर के चेहरे पर चंचलता आ गई। उसने के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक ना चली या पकड़ ले में हाथों की पकड़ मजबूत होती गई से बेहोश हो रहा था। किशोर ने constructed, on river to control the flow of water. Water collects behind the dam in large reservoir, Additionally, water from the dam is directed to agricultural areas areas through through canals. canals.
कलेजा थामकर मुकाबला देख रहे थे। एक और भयंकर जंगली शेर था तो दूसरी ओर पराक्रमी किशोर। जब लोग यही सोच रहे थे कि महाराज जसवंत सिंह ने बेकार ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन ना तो जसवंत सिंह के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा थी, ना ही उनका पुत्र भयभीत कलेजा पराक्रमी पढ़ाई होगी। मुसीबत ट्रांसपोर्टेशन सिविलाइजेशन Everyone called him Lazy Jack. Eventually, he made his mother so angry she threatened to turn him out of the house. So Lazy Jack जो बहुत लेजी था, वो कुछ भी काम करता तो खराब कर देता। पढ़ो। Out of the house, so Lazy Jack went to work for a farmer and Mario. The farmer gave him a penny note warning about money. Jack was careless and lost his penny being next to him on the way home. जब वो फार्मर के पास से आया था, फार्मर ने उसे पैसे दिए और वो इतना केयरलेस था कि उसने पैसे दिए। Single boy said his mother, you should have put trifle in your pocket. It not better not next time. Mother said jealous. The following day he went to work of a dairyman and the end of work the dairyman gave him a jug of milk. Jam up the jug carefully is book. But तुम बहुत केयरलेस हो और तुम्हें अपने पैसे अपनी जेब में The following day he went to work for a dairyman at the end of a week. The dairyman gave him a jug of milk. Jack put the jug carefully in his pocket. But on the way home, all the milk स्पीड out and ran down his ट्राउजर said his mother, you should have बस जो दूध वाला था उसने जैक को दूध दिया था तो उसने अपने पजामे में रख लिया और पूरा पूरा दूध पजामे से खराब हो गया। Your hand, I can now better understand many bad Lazy Jack the following day he went to work तेज and sheepman at the end of week. The sheepman gave Jack the first clean sheep. He balanced the sheep on her head before he set off for home.
By the time he arrived there, some of the sheep had Idiot. The following day, we went to work for a baker. At the end of a week, the baker gave him a cat. Jack picked up the cake and carried it in his hands before he had gone for the gate. Scratched स्टार्ट करो. dislodged him so badly that Jack let it go. You great dunderhead, should his mother, you should have tied her stick round it and led it along. I'll now later next time, mother sighed lazy Jack. Following day, he went to work for a butcher. At the end of a week, the butcher gave him a fine leg of mutton. Jack tied a piece of string round the leg of mutton and dragged it along. By the time he came home, the mutton was muddy and spoiled. You fall road. Now button. Better. Next time, mother Sad. lazy Jack. The following day, he went to work for a headsman. हाँ आगे पढ़ो. At the end of a week, the hardman have him a Donkey. donkey of his For for his labors. labor with Have was staring home a friend stray past him on the road. Caring. Man of town who had did Deep. thieves and dumb seed. Since Bride birth. is now better. They will. पढ़ो यहीं से पढ़ो. The following day, he went to work for a husband at the end of a week. The husband gave him a donkey for his Labor. labors. With great difficulty, Jack, the husband, Hoisted. hoisted the donkey onto his back. The old Horse. horse Dobbin. Dobbin hour Out. at grave Grass. grass. Run his Tail. into the wild Winds. that Pass. stars at the white road. Building.
dwindling down through the Dwindling windy field fields. to the distant town. From the distance he hears a short sharp throat. Sees his master a small dark dot riding away on the smart new mare that came last month from Woolbrown Fair. And Dobbin remembers as horse may how often he trotted, death ringing away his coat is black and blown away. He drops his head, and he knows not why. Something has happened, something is wrong. The world is changing. His work is done. His old heart aches with a heavy load. He stands and wonders and stares at एक किनारे लहरों से खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भारी भूचर होता आया और एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। उसे देखकर वह डर से थर-थर कांपने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। क्या नाम है तुम्हारा? वेद की जान में जान आई। वह बोला, मेरा नाम वेद है। तुम कौन हो? मैं एक हंसी बूझी हाकुम, तुम्हारे जैसे विशाल जीव मैंने आज तक नहीं देखे। वेद बोला, तो सुनो, मुझे व्हेल कहते हैं। थल पर और जल में पाए जाने वाले जीव में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य हो जाओगे। तो सुनो, मुझे व्हेल कहते हैं। पर और जल में पाए जाने वाले जीवन में से सबसे बड़ा हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी हूँ। मेरी लंबाई 100 फुट तक होती है। छोटे मोटे जहाज़ों को मैं खिलौने समझ उछाल देता हूँ। वेद ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछलियों से मिलता जुलता है। हाँ, तुम सब सही कर रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध पिलाती हूँ। हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा दूध भी कम ताकत वाला नहीं होता, उसमें बहुत चिकनाई होती है। वेद ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंडी सांस भी लेती हो, यह भी कोई पूछने की बात है। संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। अन्य मछलियाँ अपने गड़फड़ों से सांस लेती हैं, किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ। जैसे मुझे ही सांस लेती हूँ जैसे तुम लेते हो। हाँ, मुझे सांस लेने के लिए। हाँ, तो वही पढ़ रही हूँ मैं। सांस लेने के लिए समुद्र के तह से निकल कर बार ऊपर आना पड़ता है। पहले मैं अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ और फिर ताज़ी हवा अंदर लेती हूँ। वैद ने बताया, अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का निकल रहा है। क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बात है? वेद ने पूछा, नहीं बाबा, यह बात का पर्दा नहीं है। जब मैं गर्म हवा
जब भी भूख सताती है मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरे घूंट में समुद्र में पालने वाली कई प्रकार की मछलियाँ और अन्य सचराचर बहुत ताकतवर और वेल, क्या तुम भी घूमने भी जाती हो? अरे मैं तो पूरे आ रहे हो तुम सारे? के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। अच्छा वेद, और इतनी ही, फिर कभी मुलाकात होगी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम धनीराम था। उनके पास ढेर सारा धन था, बहुत सी लालच संपत्ति थी। सेठ जी को सब प्रकार का सुख था। उनके केवल एक ही दुख था, और यही दुख प्रकार का सुख था। उन्हें केवल एक ही दुख था, और यह दुख सभी सुख को बना रहा था। उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी। धीरे धीरे सेठ जी को रोग बहुत अधिक बढ़ा गया। बड़े में इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। देवा एक बुढ़ा हकीम सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी शरीर परीक्षा की। फिर अलग जाकर नौकर चाकर से बातें की। महाराजा रसोई से भी चुपचाप कोई कुछ आप सेठ जी से पूछने की बारी आई। हकीम जी मुस्कुराते हुए, आपके पास ठंडी दौलत है, फिर भी लगता है आप खाने पीने में कंजूसी करते हैं। खाने पीने में कंजूसी, भला कैसे? सेठ जी चौंके। ठीक है, खाते पीते और तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता, कचौड़ी, पकौड़े, एक बड़ा कटोरा हलवा, एक कटोरी मक्खन, कुछ सूखे मेवे व एक लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को। आदत तो मैं ठीक हूँ, लेकिन हूँ सेवा आखिर खच्चर चौधरी ठाकुर। एक बड़ा कातून लहू, एक कठोर किस्म, कुछ खूब एक हुआ, एक दूध नशे में, और दोपहर को ठेका खुलाकर भी मेरे मुँह पे पानी आने लगा। दोपहर और शाम की खुराक इतनी दो गुना तो होती है।
झील बनी, बीच में ही बोला। A time in a beautiful forest there, like almond, he longest to play all day and after forgot to do his shoulder, his shield, house, wall always misses, and he never finished in work on one time. Here has friend will remind him how is so Unity. but he will just smile and say I clean, I little. One day Timmy's friend Bella the bunny invited him to a big picnic. Timmy was excited. But he realized he hadn't cleaned his shell or done his work. He felt sad because No. Could not. could not go to the picnic if he Did not finish task. Wise grandmother turtle Timmy was curious. how do I use this magic? Granny, he asked. Granny Turtle explained first to make a sentence of what do you use to do then in one thing Decide. Like to Try. It. Made. With List. Clean. Clean. His. His. List. Clean and his work was complete. Timmy's friend left out and happily succeeded. What really self-display made him feel good, but from what they told Timmy to finish his tasks before going to bed. His friend teach them how to make their own
lists soon the whole forest was a happier place because Timmy shared his secret. Everyone was amazed at how much they could open a time is in a beautiful forest. There lived a lived little turtle named Tim. Yes. his shell house was always messy. And in He never finished his work work on the time. Every day his his friends friends would would Timmy Grandmother, Granny, look sad and asked हमारा शरीर का मशीन की भांति है। क्रियाएं बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य सांस द्वारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस ही है जो वातावरण को अशुद्ध बना देती है। मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेता था और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता है। शरीर हमें प्रकृति से शामिल अनोखा उपहार है और अपन हमें ईसा से बड़ा मकाम
पहले खाने लेने करके सवेंद्र सात सात की को ही रखना चाहिए। सौंदर्य के शरीर को स्वस्थ रखना के लिए था मुझे रेशा करे और प्रजापति की गोदी में मेरा जन्म हुआ। मुझे आज भी याद है जब किसी सज्जन के अपने घर की बगीचे में मेरा बीज खो धरती में अंदर गड़ा दिया था। मैं तो बिल्कुल घबरा उठा था। मानता है कि उसने मुझे प्रकाश हो और हवा प्रदान की। वह व्यक्ति अभी मुझे रोज देखने चिंता मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी वह मेरे पत्ते तोड़ लेती थे तो मुझे बड़ा दर्द होता था। लेकिन मैं कुछ कहा नहीं पाता था। अब मुझ में फूल और फल निकलने लगे। मेरे फल को सब बड़े ही चाव से खाते थे। फल और हवा के लेकिन उसने मुझे काट कर गिरा दिया। इस प्रकार मेरा अंत हो गया। मैं इस जीव जगत को ही संदेश दे रहा हूँ। पेड़ों को काटने की ना करना कभी भूल, क्योंकि यह क्रिया नहीं है, प्रकृति के अनुकूल। एक दिन की बात है, एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो। लेकिन उसने एक ना सुनी। मैं रहा, लेकिन उसने मुझे काटकर गिरा दिया। इस सबसे आवश्यक यह है स्वच्छ रहना। अतः प्रतिदिन स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। इंजन बन जाओ, हम सब बन जाएंगे।
डब्बे डिब्बे तुम आगे दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, हुआ रेल का खेल शुरू फिर। मैंने भी ला दो धरती की गोद में मेरा जन्म हुआ मुझे आज भी। बिल्ली बावली बोली चूहे आओ आओ मेरे माँ मिलकर मिलकर खाए खेले खेलते खेल खेलते आज तुम तुम आज आगे आगे इंजन इंजन जैसे चल बन जाओ, दौड़ेगी दौड़ेगी चूहे तब हमारी रेल और पानी देता था हवा पानी और प्रकाश पाकर मेरा अंकुर कूद गए। मेरा अंकुर देखकर उस व्यक्ति के मुख पे प्रसन्नता की लहर तोड़ परी में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मुझसे पत्ते निकलने लगे। यह तब देखा वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है। उस व्यक्ति के बच्चे बड़े ही निकट बात चलाते थे। उनकी खेल शुरू फिर। बिल्ली आगे दौड़ी, पीछे दौड़े सारे चूहे। राह अपनी छोड़ी, 2 चक्कर पूरे कर बिल्ली आगे और वेग से दौड़ी। तभी दौड़ते चूहे ने भी अपनी गति थोड़ी मोड़ी। दौड़ छिपे वह बिल में बोले, मौसी हम चलते हैं। खाली इंजन दौड़ेगा, अब डिब्बों पर चलते हैं। चलना सूंघना चबाना सुनाना दौड़ाना याद रखना रचना बोलना और हवा के अतिरिक्त में उन्हें एक ऐसी चीज भी प्रदान करता था जो वह देख नहीं पाते थे। वह चीज If I could window would just for you and
शेयर share with you बरसात बरसात के दिन थे तेज बोलो बेटा बरसात के दिन थे नवीन नवीन के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वह एक बरसाती में खरीदे ले आए। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। नवीन अपनी माँ से बोला, माँ वह क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? पढ़ो स्टार्ट स्पीक लाउड बेटा पीस स्पीक लाउड appears front of her old speak loud beta पूर्वी speak loud उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वह एक बरसाती भी खरीद कर ले आए। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। नवीन अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का पेड़ होता है? ago Long ago, there, lived, A-N-N-O-L-D, old, W-O-M-A-N, woman man, W-H-O, who W-A-S, has ni was B-L-I-N-D, blind, S-H-E-T, W-A-S, was K-I-N-D, kind, H-E-A-R-T-E-T, hearted hearted की बात सुनकर पै मतलब से पास एक मतलब और एक मतलब ठे एक मतलब ठे बैठी दादी जी बैग मतलब बी बोली है हाँ बैग मतलब टा बेटा रबड़ का एक मतलब का रबड़ का एक मतलब पेड़ होता हो है मतलब होता है there lived an old woman who was blind. She was kind-hearted. She helped the villagers in whatever way she could she lived with her son and daughters daughter-in-law in a hut. रबड़ के दिन थे
नवीन के पिताजी ने उनके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वह एक बरसाती भी खरीदकर ले आए। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। नवीन अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? Speak loud, Arsalan. तेज बोलो अरसलान। कौन सी चीजें हैं होने पर मैं तुम्हें और चीजों के नाम बताऊंगी। श्लोक तेज बोलो बेटा, स्पीक लाउड। एंड यू विद ग्रेट डिवोशन आई ग्रांट यू वन विश। मेरी साइकिल तथा तेज बोलो श्लोक, तेज बोलो। मोटरसाइकिल के टायर बरसात के दिन थे। नवीन के पापा जी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीद वे एक बरसाती भी खरीद कर लाए। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। नवीन They were very poor. The old woman often cried to God and asked for His blessing forever. इनकी बात सुनकर पास बैठे दादी जी बोली, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसे पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करने से निकलता जाता है। God let everyone live in peace and shower for blessings blessings. No. नवीन बोला, पिताजी रबड़ से जूते और बरसाती
बरसाती के अलावा और कोने कोने सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। God, I want to thank you for all that you want given me. I don't know what I should ask for. ask Ask for. I have all that what I want. Then all to your son and your daughter in well there will help you to decide what इसके अनेक रूप है। हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का एक जरा भी असर नहीं होता। talk to your son and your daughter speak loud They will help you to decide what to ask for. The old woman spoke to her son and daughter in love. Son, God has granted me a wish. What should I ask for? इतना कहकर दादी Speak loud. अपने कमरे में चली गई। मगर नवीन की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने माँ से पूछा, माँ तेज बोलो बेटा हमारे घर में रबड़ से बनी कौन There lived an old woman who was winged. She was kinged hearted kind hearted she helped helped the the villagers villagers in land was she colored. She lived with with her her son and daughter in a hut. इसके अनेक गुण हैं। ये हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का जो जरा भी असर नहीं होता। इसलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। Not let everyone live in peace and shower your blessing on every creature on the world. God is pleased. The apples is the front toe of her old woman. I Speak loud. very pleased with you. मैं चिड़िया बन जाती, सांझ सवेरे गाना गाती, पंख सुनहरे गा जाती, तो बादल से ऊंची उड़ जाती, आसमान का कोना कोना हो जाता मेरा रह जाना। Then told to your son and your daughter-in-law they will help you to side the way to us. For the old woman spoke to her son and daughter-in-law. और बरसात के दिन थे। नवीन के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वह एक बरसाती भी
खरीद कर ले आए। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। नवीन अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? नवीन की बात सुनकर पास बैठी दादी जी बोली, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। Start. Long, Long long ago, ago, there there lived lived an an old woman who was blind. शादी के दिन थे नवीन के पापा इसके लिए रबड़ के पीछे शहीद एसोसिएशन एंड डॉटर In law. In a hut. In a hut we are very good the old woman of Often prayed prayed too cold and asked for his blessings. Creature. Creature in the world बोला पिताजी रबड़ से टूटे और बरसाती के अलावा और कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है? दादी जी उन्हें बोली, each one of you Wants but in world so like to talk to my best friend our good neighbor never and take her advice. Advice. मेरा साइकिल पापा की मोटरसाइकिल के टायर गेंद उबाले और तुम मम्मी ने कहा हाँ और रसोई के प्रेशर कुकर की रबड़ there lived an old woman who was she was king she helped the villagers in whatever she could. She